अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यौम पैदाइश पर खराज अकीदत किया पेश। इजराइली हमले में गाजा के अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खीमों पर बमबारी, 3 फिलिस्तीनी शहीद। अब खबरें तफसील से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक सदर जमहूरिया हिंद और भारत रत्न को दिली खराज अकीदत पेश किया। वजीर कोंडा सुरेखा, MLC महेंद्र रेड्डी और मुशीर नरेंद्र रेड्डी के हमरा चीफ मिनिस्टर ने जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर फूल चढ़ाए और साइंस और टेक्नोलॉजी में डॉक्टर कलाम के गहरे ताउन का एजाज़ दिया। रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर कलाम की मुतासिरकुन विरासत पर जोर दिया, जिसने हिंदुस्तान के नौजवानों को अपने ख्वाबों का ताक़ुब करने और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने की तरगीब दी। जिला मेदक के नारायण खेर मंडल के मौजे संजीवन राव पेट में कांग्रेस और BRS के कारकुनों के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में आलूदा पानी के इस्तेमाल से 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई थी और तकरीबन 100 देहाती बीमार हो गए थे। वाक़े के बाद मेडिकल कैंप कायम किया गया था, जहां ये लड़ाई हुई। दोनों सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान आलूदा पानी के बहरान पर इल्जाम तराशी ने कशीदगी बढ़ा दी, जिसके बाद शदीद लफ्जी झड़पें हुई, जो जल्द ही हाथापाई में तब्दील हो गई। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हुजूम को मुंतशिर किया, जिससे मजीद तशद्दुद को रोका जा सका। हालिया सूरत हाल काबू में है, लेकिन दोनों जमातें इस अलमनाक वाक़ये के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। చాలా మంది అస్వస్థతకు గురైపోయారు। సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నిన్న ఒక అబ్బాయి చనిపోయాడు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని చనిపోయాడు। వాంతులు విరేచనాలు జరుగుతున్నాయి, ఘోరంగా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్। ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు ఆల్రెడీ నైట్ ఒక ఆమె చనిపోయింది, పెద్ద మనిషి, చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది। ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడక్కడ హాస్పిటల్లో, ఇప్పుడు కేర్ హాస్పిటల్ ఆల్రెడీ 3 ఉన్నారు ఆల్రెడీ। ఇక్కడ చిన్నపిల్ల హాస్పిటల్లో ఒక పాప ఉంది, మా పాపనే ఉంది। ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నారు, ఇక్కడ అక్కడ వాళ్ళ ఆరోగ్యం క్షీణించి సంగారెడ్డి హాస్పిటల్ కూడా ఇంతకుముందు వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ। సో అక్కడక్కడ దసరా పండుగ చేసుకోలేకుండా ప్రతి ఇంట్లో ఒక రమ్మారమ్మిగా ఒకరు లేదా ఇద్దరు ఖచ్చితంగా ఈ బారిన పడ్డారు। ఆల్రెడీ వామిటింగ్ అవుతా ఉంది, ఖచ్చితంగా మోషన్స్ అవుతా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్। దయచేసి అధికారులు తక్షణమే స్పందించండి। దయచేసి శాసనసభ్యులు కూడా సార్ మీ దండం పెడుతున్నాం సార్, కొంచెము గౌరవ శాసనసభ్యులు సంజయ్ రెడ్డి సార్ ఎమ్మెల్యే గారు దయచేసి అధికారులకు ఖచ్చితంగా చెప్పండి సార్, కొంచెం చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్లీ మా ఊరికి సమస్యను పరిష్కరించాలని అందరి తరఫున నేను విన్నవించుకుంటున్నాను సార్। దయచేసి అధికారులు మీ తప్పని మేము భావించట్లేము, కానీ చూడండి ఒకసారి మా ఊర్లో బావి వాటర్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, అక్కడ చూడండి దాంట్లో చిన్న చిన్న పురుగులు తిరుగుతున్నాయి సార్, దాంట్లో చనిపోయింది ఆల్రెడీ। ఎంత అంటే అంత గలీజ్ ఉన్నాయి వాటర్, చూస్తేనే వామిటింగ్ వస్తుంది, అంత వాటర్ అంత ఘోరంగా ఉంది। అందరూ పండగకి వచ్చారు, కానీ పండగకి రాగానే ఇక్కడ పండగ చేసుకోవట్లేదు సార్, అందరు దవాఖాన చుట్టూ తిరుగుతున్నారు। దయచేసి తక్షణమే స్పందించండి అధికారులు, ఏమన్నా అనుకోండి, కానీ ఇక దయచేసి ఈ క్లెయిమ్ మీరు స్పందిస్తారని కాంక్షిస్తున్నాను సార్। మా ఊర్లో గత 2-3 రోజుల నుంచి పబ్లిక్ వాంతులు విరోచనాలు అవుతున్నాయి। అది ఇప్పటి వరకు కూడా హెల్త్ వాళ్ళు కానీ గ్రామం వాళ్ళు కానీ ఏది కూడా ఇంతవరకు కూడా దానిపైన చర్య తీసుకోలేదు। పబ్లిక్ మొత్తం భయభ్రాంతులకు ఇదై ఇది ఇప్పటికే చాలా ఒక 50 మంది పేషెంట్లు దీనికి గురైనారు। ఈ మొత్తం ప్రతి విలేజ్లో ఏమైందంటే పండుగ వాతావరణం ఉంది, మా విలేజ్లో మట్టుకు ఈ డిహైడ్రేషన్ వామిటింగ్సే ఉన్నాయి। దీనివల్ల ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కానీ చర్యలు తీసుకొని ఏమన్నా అది దేనివల్ల అయింది, వాటర్ వల్ల అయిందా, దేనివల్ల అయిందా ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా నిర్ధారించలేదు దానిపైన। అది ఏమవుతుంది, ఎందుకు అవుతుంది కూడా ఏం తెలుస్తలేదు। ఇప్పటికైనా అధికారులు వచ్చి మా ఊరికి వచ్చి కొద్దిగా దీనిపైన చర్య తీసుకొని ఏమైనా స్పెషల్ క్యాంపులు కానీ ఏమైనా నిర్ధారణ చేస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము। సార్ నా పేరు పెట్టారు, సంజీవరావు పెట్టినాను। కొన్ని మాకు వాటర్ కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం వల్ల, అందువల్ల మా ఊళ్ళో కూడా చాలా మందికి అయింది। ఇప్పుడు దీంతో 3వ రోజు నేను రావడం, ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందో నాకు తెలియదు। నాకు మోషన్స్ పెట్టి 3 రోజులు అవుతుంది, కడుపు నొప్పి, మోషన్స్, తలనొప్పి, ఆ వాటర్ వల్లనే సార్। ఏమో తెలియదు సార్, డాక్టర్లు అయితే వాటర్ వల్ల ఆయన చెప్తారు, అది ఉండదు సార్। మినిమం అంటే మా గల్లీకి ఉన్నారు సార్ ఒక 20-25 మంది వచ్చారు మా కాలనీలో, మా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో। నా పేరు రాము। గత 4-5 రోజుల నుంచి
ఇక్కడ వ్యాపారం రావడం వల్ల వీళ్ళందరికీ ఇలా నార్మల్గా ఫీవర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నారు. వాంతులు విరేచనాలు అవ్వడం వల్ల వీళ్ళు ఇక్కడ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఊర్లో ఉన్న మంచినీళ్ళ బాగా तेलंगाना में दशहरा का त्यौहार मटका और शराब के बगैर मुकम्मल नहीं होता और इस बार भी शराब की फरोख्त से एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया है। 10 दिनों में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब फरोख्त हुई है, जो नशे की आदी अफराद की जानिब से जारी सिलसिले का हिस्सा है। आबकारी हुक्कामों के मुताबिक इस दौरान शराब खानों, दुकानों और पबों में फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे सरकारी खजाने को भारी आमदनी हासिल हुई है। हैदराबाद हमेशा की तरह शराब की फरोख्त में सबकत हासिल रखी है। रियासत में 2260 शराब की दुकानें, 1171 बार और रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां पर हर साल दशहरा के मौके पर बड़ी मिकदार में शराब फरोख्त की जाती है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पीर को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी विकाराबाद जिले के दामगंडम जंगलाती इलाके में बहरिया के लिए VLF रडार स्टेशन की तामीर की सख्ती से मुखालफत करती है। उन्होंने हैरत का इजहार किया है कि रियासत हुकूमत एक जानिब मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा रखती है, जबकि दूसरे जानिब बहरिया के प्रोजेक्ट के मंजूरी देकर दरिया की हिफाजत को खतरे में डाल रही है। केटी रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया है कि तेलंगाना के मफादात से समझौता करने के मुतवक्के फवायद क्या है और इस बात पर जोर दिया है कि बीआरएस पार्टी इस प्रोजेक्ट के संग बुनियाद रखने के तकरीब के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। 12 లక్షల చెట్లు తీసేస్తారట. 3000 ఎకరాల అడవిని నాశనం చేసి అక్కడ రాడార్ అనేది పెడతారట. దీనివల్ల అక్కడ ఉండే పర్యావరణం దెబ్బతింటది, దీనివల్ల అక్కడ ఉండే పక్షులు దెబ్బతింటాయి, ప్రాణులు దెబ్బతింటాయి. అక్కడ రేడియేషన్ వల్ల జీవ వైవిధ్యం మొత్తం దెబ్బతింటది. అది వద్దు అనే మాట ఇవాళ ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. అది మాకు తెలుసు కాబట్టి గత 10 ఏళ్ళుగా దాన్ని కానియలేదు. అది తెలుసు. పొడుగుకు నష్టమైతుంది, పరిగికి నష్టమైతుంది, వికారాబాద్ జిల్లాకు నష్టమైతుందనే మనం ఆ పని కానియలేదు. కానీ ఇవాళ వీళ్ళు రాగానే 10 రోజుల్లోనే ఆగమాగం 12 లక్షల చెట్లు కొట్టేసే ప్రాజెక్టుకు వీళ్ళు జెండా ఊపితే మరి ఇక్కడ పోయిన పర్యావరణవేత్తలు ప్రశ్నించే గొంతులు నేను అడుగు. పర్యావరణం దెబ్బతింటే అడవులన్నీ పోతే రేపు వర్షాలు పడతాయా? మూసీకి నీటి చుక్క వస్తుందా? ఈ ప్రాంతంలో వ్యవసాయానికి మనుగడ ఉంటుందా? ఆ రేడియేషన్ తోని నష్టం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ తెలుసా ఈ ప్రభుత్వానికి? उत्तर प्रदेश के बैराज में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान शुरू होने वाले तशद्दुद पीर को भी जारी रहा, जिसके नतीजे में शरपसंदों ने मुतअद्दिद दुकानों, अस्पतालों और घरों को आग लगा दी। इलाके में पुलिस फोर्स की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि हालात कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। एक गांव में रात के वक्त आतिशज़दगी के वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और शरपसंदों के फरार होने के बावजूद भी इलाकों में सिक्योरिटी बरकरार रखी गई है। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल में है, सभी कंट्रोल में है। प्रतिष्ठान थे, हॉस्पिटल्स थे, ये जो शोरूम है किया जाए, इसके लिए हल्का बल प्रयोग करना हो तो situation is under control. Yes, it is under control. Okay. It is under control. We are speedily gaining control of the whole situation. Yes. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating trouble. Situation is under control. Yes, right now, yes, it is under control. Okay.
पीएससी तेजी से आगे पीएससी मत बंद आगे बढ़िए आगे तमाम जो प्रतिष्ठान थे, हॉस्पिटल्स थे। आप देखिए ये जो शोरूम है किया जाए, इसके लिए हल्का बल प्रयोग करना हो तो देखिए करने की परमिशन दी गई है ताकि महाराजगंज में हालात खराब बने हुए हैं। जी महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार। जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ, जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके। वजीर खारजा एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं, जो 15 और 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान, चीन, रूस, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमा शरीक होंगे। इसका मकसद रुकने ममालिक के दरमियान माशी, सिक्योरिटी और सफारती ताउन को फरोग देना है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मौके पर एक सरकारी आशाई का एहतमाम भी किया है, जो इजलास की बाज़ाब्ता शुरुआत का आगाज़ करेगा। आलमी रहनुमा जैसे चीन के वजीर आजम, रूसी वजीर आजम और ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब की मुआशी बदहाली के सिलसिले में कांग्रेस ने रियासत की आप हुकूमत और बीजेपी दोनों को इल्जाम ठहराया है। हज़ब इख्तलाफ के लीडर प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि पंजाब में किसानों से खरीदे जाने वाले धान की जखीरा करने के लिए गोदामों में जगह खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से रियासत एक ज़री बहरान की तरफ बढ़ रही है। बाजवा ने रियासती हुकूमत को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ ये भी इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी और वजीर आला भगवत मान ने पंजाब की मैशियत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स करता हूँ। आप पंजाब में एक बहुत मेजर क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण आज एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस AICC हेडक्वार्टर से कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि पंजाब में बहुत सारी जो फसलें होती हैं उनमें जो मेन हमारा कैश क्रॉप है वो पैडी है, चावल जिसको हम कहते हैं। चावल, फिर वीट है, शुगर केन है, कॉटन है और कई कई जगह पर मक्का भी है, दालें भी हैं, कुछ और पोटैटोज भी हैं। ये छोटी फसलें, मगर मेजर फसल जो पंजाब की है वो आज राइस और वीट है। कैश क्रॉप हमारा पैडी है। पंजाब में तकरीबन उत्पादन पैडी का होता है 180 से लेकर 185 लाख मेट्रिक टन और इसमें से 99% जो चावल है, बिकॉज पंजाब इज़ नॉट राइस ईटिंग, तो तकरीबन 90-99% 99% ये सारा चावल हम कस्टम मिल कर सेंट्रल पूल के लिए और PDS सिस्टम जो है हिंदुस्तान में जो गरीब लोगों के लिए सूबों में जाता है,
तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा मकदार में अगर हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट पिछले तकरीबन 60 साल से अपना हिस्सा डाल रही है तो पंजाब इज एट नंबर 1। और एक बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बात का पता होता है और बहुत अच्छी तरह वो वस्ता हैं जो पंजाब की या जिस एरिया में भी ये फसल होती है। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब ये चावल पैडी फसल आती है मंडी में, पंजाब की एजेंसीज एफसीआई के लिए ये माल सारा खरीदती। अल्टीमेटली ये एफसीआई जो है ये एक एमएसपी पर, जनरली पंजाब में एमएसपी पिछले 60 साल से चल रही है वीट और पैडी पर, ये खरीदते। और उसके बाद एफसीआई ये राइस शेलर्स जो हैं, हमारी एक जो सबसे बड़ी पंजाब में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड, उसको राइस शेलर्स हम कहते हैं। तकरीबन 5500 राइस शेलर्स हैं पंजाब में। और ये बिल्कुल इसका ताल्लुक है किसानी के साथ और राइस और पैडी के साथ। पिछले साल भी ये प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पर आई कि जो पंजाब का राइस है जो एफसीआई ने खरीदा है वो हमारे गोडाउन्स में लगा हुआ है। आज मैं बताना चाहता हूं हर साल 1 अक्टूबर जो होता है वहां से खरीद शुरू होती है मंडियों की। आज 14 दिन हो गए, 14 दिनों में तकरीबन बस 5 लाख मेट्रिक टन अभी तक चावल आया है। मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के भगवंत मान जी जो 6 महीने पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, उनको फूड मिनिस्टर से मिलना चाहिए था 6 महीने पहले। कारण कि सारे गोडाउन्स पंजाब के नाक नाक पर भरे हुए हैं। हमारे पास 5% भी स्टोरेज के लिए अब कैपेसिटी नहीं है, जगह खाली नहीं। क्योंकि अगर हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते या फूड मिनिस्टर से मिलते या रेलवे मिनिस्टर से मिलते तो ये हर महीने लगातार कम से कम 10 से 15 लाख मेट्रिक टन पंजाब के गोडाउन से अगर मूवमेंट होती तो आज वहां जगह होती। अब सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि फसल आ गई है, चीफ मिनिस्टर अपने सुरूर में थे, उनका पता नहीं ध्यान किस तरफ था। आज रवनीत सिंह बिट्टू जी को लेकर, जो नए कन्वर्ट हैं, उनको लेकर आज प्रहलाद जोशी जी के साथ पास गए हैं। और ये जो अब मूवमेंट हो रही है, मैं बताना चाहता हूं, अब डेली मूवमेंट 1 लाख मेट्रिक टन से अब आते 2, 3, 4 दिन में ये बढ़कर 6 से 10 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। सीजन होता है तकरीबन 20 से 25 दिन का। और आप जो बात सबसे बड़ा क्राइसिस है कि इतना बड़ा गलट आ जाएगा कि वहां कोई भी स्टोरेज के लिए जगह नहीं बचेगी। और चावल ऐसी फसल है जिसको इंटरनल स्टोरेज चाहिए, गोडाउन चाहिए, बाहर नहीं लग सकता। वीट की फसल बाहर भी लग सकती है, 5-6 महीने चल सकती। चावल ऐसा है वो इमीडिएटली डिस्कलर होता है, ब्रोकन हो जाता है और उससे बहुत भारी नुकसान होता है। अब आप हैरान होंगे कि कल सारे पंजाब में किसान, ये जो हमारी वहां संयुक्त मोर्चा है, किसानों की एक जथेबंदी है, सारे इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और पहली दफा राइस शेलर्स भी उसी प्लेटफॉर्म पर थे। उसी प्लेटफॉर्म पर जो हमारे कमीशन एजेंट हैं पंजाब, हम उसको आड़तिया कहते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आए और सभी ने कल 3 घंटे के लिए एक सिंबॉलिक सारे पंजाब के रेलवेज और जितने बड़े हमारे हाईवेज हैं सारे के सारे जाम कर दिए। 3 घंटे पंजाब में कल कंप्लीट ट्रेन्स और बसेस और गाड़ियां कंप्लीटली जाम। आज भगवंत मान जी गहरी नींद से उठे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जी जो पहले भी
इजराइल ने गाजा के अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खीमों पर बारूद बरसाया, जिसके नतीजे में कई फिलिस्तीनी जिंदा जल गए और मुतअद्दिद झुलसकर जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देर अल बलहा में बमबारी के बाद 3 फिलिस्तीनी शहीद और 70 जख्मी हो गए हैं, जबकि तकरीबन 20 से 30 खीमे तबाह हो चुके हैं। मस्जिद बारा नसीरत के स्कूल में पनाह लेने वाले बेघर अफराद पर टैंकों से गोलीबारी की गई, जिसके नतीजे में 22 अफराद शहीद और 80 जख्मी हो चुके हैं। आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यौम पैदाइश पर खराज अकीदत किया पेश। इजराइली हमले में गाजा के अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खीमों पर बमबारी, 3 फिलिस्तीनी शहीद। 1 TB उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।